Hello everyone, good morning all. I Jitender welcome you all to RKP online classes. As you know beta, in previous class we have discussed chapter 1 and the topic was there interconversion of states. There are a lot of processes we have discussed like fusion, that is melting also, freezing, vaporization, evaporation, condensation, sublimation, and last one was the deposition. So today we are going on the next stage. So today our topic is evaporation. Two processes were there during that topic. One was vaporization, second was evaporation. I have told you in that class that there is small difference. And what was that difference in between vaporization and evaporation? The difference was the vaporization will take place at its boiling point, but evaporation will take place below its boiling point. For example, in one case, water will boil at 100 degrees Celsius in any process where the water will start to boil at 100 degrees Celsius. That process is vaporization. I have given you example also during that video. You have got a picture in between the video where both the processes are discussing. So you have got a picture there in which one side your vaporization is taking place, on the other side evaporation is taking place. So differences are clear there. Now we are going on the next stage where it will more clear to you that what is evaporation. So evaporation is the process of conversion of liquid into gas below its boiling point. Like in daily life we are washing our clothes and then we will spread it outside. What will happen? Sunlight will fall on that cloth, air will also blow from there. So lot of factors are there that are playing an important role in vaporization. So what will happen? Temperature is not 100 degree. क्लियर? बाहर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बट स्टिल आपके क्लॉथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद. स्टार्टिंग में कैसे थे? वेट क्लॉथ्स थे, बट वो क्या हो गए? ड्राई हो गए. इट मींस वाटर है वो कहाँ गया? वो क्या हो गया आपका? इवेपोरेट हो गया. वेपराइज नहीं हुआ, वो क्या हुआ? इवेपोरेट, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बट the temperature is not going on the 100 degree Celsius. If it will approach the 100 degree Celsius, then it will hard to survive for us in 100 degree Celsius. कि 100 डिग्री सेल्सियस में हमारे लिए सरवाइव करना क्या हो जाएगा बेटा? डिफिकल्ट हो जाएगा. सो 100 डिग्री टेम्परेचर हमारा अप्रोच नहीं हुआ, बट स्टिल वो वाटर क्या हो गया आपका? वहां से क्लोथ से दूर हो गया. मीन्स आपका जो वेट क्लॉथ था वो क्या हो गया? ड्राई. तो यही है आपका इवेपोरेशन. आपको समझ में आया होगा. नाउ some factors are there, like I have told you now only that sunlight is also there, that is playing an important role in the drying of that cloth. Second factor, air. Just suppose air is blowing and there is a cloudy day. On that day also your clothes are drying. आपके कपड़े हैं वो सूख जाते हैं. Third one factor, temperature, that is already discussed. Fourth one, humidity. We are not discussing it like this. You will ask to me that, sir, you are not writing anything, then how we will note it down? So let's start our topic properly. So our topic for today's class, topic factors affecting evaporation. What is our topic? Factors affecting evaporation. So how many factors are there beta? 4. How many factors are there? 4. 1, 2, 3, and this one is 4. So first factor, surface area. Surface area. Second one, who will tell? Tell it fastly beta. Second one, temperature. Temperature. Third one,
held fastly air, yeah, wind. Next one, humidity. Next one, humidity. This is a very interesting and important topic. So be attentive, एक्टिव रहिए, क्लियर है, अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए. सो फर्स्ट वन, सरफेस एरिया. एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा. मान लो आपने एक बेडशीट ली, उसको वॉश किया. बेडशीट को वॉश करके आपने क्या किया, उसको एक तो आपने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया पूरे को. क्या कर दिया, स्प्रेड. फॉर एग्जाम्पल बेडशीट नहीं है, टॉवल है. मान लो ये क्या है, टॉवल. ये आपने इसको वॉश किया, तो एक तो आप इसको पूरा ऐसे स्प्रेड करके बाहर खुले में ऐसे इसको छोड़ दो. अंदर रूम में भी आपने फैन ऑन करके या वैसे नॉर्मली भी आपने इसको छोड़ दिया, तो बिल्कुल स्प्रेड करके आपने इसको छोड़ा है, तो ये इसको आपने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया. सेकेंड, मैं इसकी क्या कर दूं, ऐसे लोकल लैंग्वेज में आप बोलते हो, इसको क्या कर दिया हमने, तय कर दी. इसकी मीन्स लेयर्स बना दिया आपने, ऐसे कर दिया. ये वेट है, अभी वेट है, आपने ऐसे करके इसको रख दिया. सो नाउ टेल मी, इन विच केस इट विल गेट ड्राई फास्टर. सो ओनली वन आंसर शुड बी देयर इन फर्स्ट केस, व्हेन इट इज स्प्रेडेड. जब इसको फैला रखा है प्रॉपर्ली, उस केस में ये जल्दी ड्राई होगा. तो क्या सीखा हमने, उस केस में ड्राई हुआ मीन्स वाटर आपका इवेपोरेट जल्दी हुआ. तो सरफेस एरिया किस में ज्यादा था बेटा, सरफेस का एरिया. एक तो आपने इसको प्रॉपर्ली क्या कर रखा है, ऐसे कवर कर रखा है, बार बार इसकी आपने तय कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया विल बी लेस. बट जब आपने इसको स्प्रेड किया, सरफेस एरिया क्या होगा आपका, लार्जर, ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया सरफेस एरिया. तो मोर द सरफेस एरिया it will get dry faster, means evaporation rate is faster. Rate of evaporation is directly proportional to the surface area. अब directly क्यों बोला, directly और inversely. proportionality के दो चीजें होती हैं बेटा, ठीक है. क्या होती है, एक proportional होता है, proportional means जब आपका एक जो फैक्टर है वो दूसरे पर डिपेंड करे. तो प्रोपोर्शनल में दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्टली होता है, एक इनवर्सली होता है. क्या होता है, एक तो डायरेक्टली होगा, एक होगा इनवर्सली. तो डायरेक्टली मीन्स सीधा, जब एक चीज को आपने एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो दूसरी भी आपकी इंक्रीज हो जाए. जैसे यहां था, सरफेस एरिया को आपने इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. सेकेंड वन, इनवर्स. इनवर्सली मींस उल्टा, अपोजिट. एक को इंक्रीज करें तो दूसरा क्या हो जाए, आपका डिक्रीज हो जाए. तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर. सो इन फर्स्ट केस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड इवेपोरेशन? सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. How will you write it? In case of surface area, more the surface area, greater the rate of evaporation will take place. Clear? In case of surface area, more the surface area, greater the higher the rate of evaporation will be there. Clear? For example, we are taking a cloth, while we will spread it fully, completely जब उसको spread किया जाएगा, it will get dry faster as compared to folded. जब आपने उसको fold कर रखा है, तय को बोलते हैं बेटा fold. Clear? When it is folded, then in that case the surface area become lower and it will get dry slowly. Clear? क्या करेगा? Slow dry होगा. Second case, temperature. Second case बेटा temperature. In winter days, during the winter days, what will happen? हम observe करते हैं. देखो एक basic सा example देता हूँ. Now the summers are there and you have observed winter also. Every year we are observing both the seasons. So what is happening?
ड्यूरिंग समर्स आवर यूनिफॉर्म्स आर ड्राइंग एट टाइम, मीन्स कम टाइम में वो सूख जाती हैं, बट इन विंटर्स उनको सूखने में पूरा दिन लग जाता है, नेक्स्ट डे भी वो आपको वेट मिलती हैं। मशीन, वॉशिंग मशीन एक अलग बात है बेटा, नॉर्मली नेचुरली जब हम उसको ड्राई करते हैं तो क्या होता है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम इन विंटर्स, मीन्स इन विंटर्स टेम्परेचर इज लो, इन समर्स टेम्परेचर इज हाई, मीन्स जहां पर गर्मी आपकी ज्यादा होगी कोई चीज ड्राई जल्दी होगी, मीन्स हायर द टेम्परेचर more the rate of evaporation, means there is also directly proportional, directly proportional. Example, in summers a cloth will get dry faster as compared to in winter, as compared to winter. क्लियर कि विंटर में, सर्दियों में कोई चीज आपकी क्या होगी, स्लो ड्राई होगी, मीन्स वो सूखने में ज्यादा टाइम लेगी। नेक्स्ट वन, विंड। विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स हवा, क्लियर। सो विंड, एक आपका नॉर्मल डे है, ठीक है, एक आपका विंडी डे है। ऑन विच डे योर क्लॉथ्स विल गेट ड्राई फास्टर, किस दिन वो जल्दी सूखते हैं। सो देयर इज इजी आंसर, स्ट्रेट आंसर, दैट ऑन विंडी डे इट विल गेट ड्राई फास्टर, कि वो जल्दी सूख जाते हैं जिस दिन हवा चलती है, क्लियर। सो in case of wind also there is directly proportional, directly proportional, clear। एक और एग्जांपल देता हूं। एक बेटा आपने नॉर्मली क्या किया, एक रूम है जिसके अंदर फैन नहीं चल रहा, आपने कोई क्लॉथ रखा जो वेट है, वो ड्राई होने में ज्यादा टाइम लेगा। दूसरे केस में आप फैन ऑन कर देते हो, क्लियर है, तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, मीन्स आपका वाटर है इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल है जो आपके घर में लेडीज डेली फॉलो करती हैं, दैट इज जब वो फ्लोर को क्या करती हैं, पोछा लगाती हैं, मीन्स डस्टिंग जब आपकी होती है, वेट क्लॉथ से आपका पोछा जब लगाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, वो पोछा लगा के वो क्या करती हैं, फैन ऑन कर देती हैं, मीन्स विंड का फैक्टर वहां भी अप्लाई होता है डस्टिंग के दौरान। तो जैसे ही फैन ऑन किया वो 2-4 मिनट में, 5 मिनट में ड्राई हो जाता है फ्लोर आपका पूरा, क्लियर। सो दिस इज द example, basic example that we are taking from our daily life, clear। I hope you all are getting all the factors properly, clear। Next one, humidity। Humidity means nami, humidity means nami, means the water vapors, the quantity of water vapors present in air, कि एयर में कितनी आपकी वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ द वेपर्स, so that is humidity। For example, on a rainy day clothes will get dry later, but on a dry day the clothes will get dry faster। so ह्यूमिडिटी के केस में आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक ड्राई डे है, और एग्जांपल देता हूं आपको कि एक आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओ जहां आपकी स्नोफॉल होता है, एक आप जाओ बेटा राजस्थान के अंदर, तो कहां पर आपको इवेपोरेशन ज्यादा मिलेगा। सो इन राजस्थान ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर ह्यूमिडिटी है वो कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सो एट दैट प्लेस वी विल गेट ड्राइड फास्टर। सो ह्यूमिडिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, clear beta। so this is our topic, and in next one we will discuss some applications of
evaporation. Thank you. Have a nice day, beta.